Good morning, student. Myself Ashok Kumar. In today's class, we are come up with a new topic, that is opposites. Opposites mean the word that have a opposite meaning to a word. यदि हम कहें तो आज की क्लास में हम सीखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द उन्हें कहा जाता है ऐसे शब्द जिनका अर्थ किसी शब्द के लिए उल्टा हो। That means if we are talking about the good, that the bad is the opposite of good. But before going to further in our class, today's class, let we remind our last class. In our last class, we have learned about the sound and how the sound will help us to find out the difference between different type of words. The sound is a part of our English language because today we are more focused about the English spoken. So in spoken, every word have a different sound, and different sound in our language is also shown. In our last lesson, we have learned about the different words and their pronunciations, and I have also given you some exercise as your homework. That exercise will I check in our school. So do your work in your notebooks and maintain it. So let's start today's topic. Today's topic is opposites. Opposites means a word that have exactly opposite meaning to other words. That's called the opposite. According to definition, opposites are words which have exactly opposite meaning. For example, bad is opposite to good. Bad is opposite to good. In examination, one question related to opposites is asked. कहा यह जाता है कि ऐसे शब्द जिनका मीनिंग किसी शब्द का विलोम हो या उल्टा हो वो अपोजिट कहलाते हैं। हमारी परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाता है और इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना भी ज़रूरी है। And in our life we will face many opposite things, so we have to knowledge about their pure and opposite meanings. There are many type of rules to construct the opposites, but later in your further studies we will see the opposite word is replaced by antonyms. These antonyms will help us to find out the different meaning for a single word. So let's start with the rule first. So guys, have you got the meaning of opposites? Here is a picture of two boys. One boy has get 100 out of 100 and the opposite of this is 0 out of 100. That the one boy is clever and other is stupid. So clever is the opposite of stupid and stupid is a opposite of clever. Rule first for
formation of opposites. Basically, there are a set of rules to develop to form opposites to a word, but later on we will face a issue that every word has followed by some set of rules that have a different meaning and that have a different kind of set of rules. In these kind of words, I can say the opposites and the synonyms are basically composed by the suffix and prefix. Suffix and prefix are two type of adding words. In our Hindi language we call them उपसर्ग एंड प्रत्यय. देखिए, हमारे जीवन में हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे जिनके अपोजिट और जिनकी सिनोनिम और जिनके विलोम शब्द हमारे साथ साथ चलते रहेंगे. लेकिन जब आगे की हम पढ़ाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भी एक नियम के अनुसार ही बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो इनमें जोड़े जाते हैं और इन्हें बना दिया जाता है. ये वर्ड हम इसलिए काम में लेते हैं सो वी कैन गेट अ न्यू वर्ड एंड अ न्यू मीनिंग, न्यू स्पेलिंग. इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है प्राइमरी क्लासेस में. जैसे कि कुछ शब्दों में हम डिस जोड़ देते हैं, कुछ शब्दों में हम मिस जोड़ देते हैं, कुछ शब्दों में इन जोड़ देते हैं, कुछ में हम किसी शब्द को हटा के दूसरा कर देते हैं, कुछ में कम्प्लीटली हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं. लेकिन एक्चुअली में ये सब मीनिंग्स, ये सब स्पेलिंग्स हम क्यों काम में लेते हैं? ये हम इसलिए काम में लेते हैं कि हमें जो शब्दों की कमी होती है उस कमी से जूझना ना पड़े, हमारे पास नए शब्द बनते रहें. इसलिए हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम काम में लेते हैं. जैसे एज लाइक, इन दिस वर्ड द रूट वर्ड इज लाइक एंड द डिस इज एडेड हियर एंड द न्यू वर्ड इज बिकम dislike. The meaning of like is attractive. और हम ये कह सकते हैं कि like का मतलब ये होता है किसी को पसंद करना. But when we add a prefix on this, the word is like and the prefix added here, that is this, and this, by this the our meaning of this like has changed and it become an antonym or an opposite to like. यदि देखा जाए तो हम सुफिक्स और प्रीफिक्स जोड़कर लाइक, जिसका मतलब होता है पसंद करना, इस शब्द में हम एक डिस शब्द जोड़ देते हैं जो कि हमारे पास एक प्रीफिक्स होता है. प्रीफिक्स जोड़ते ही इसका मतलब बदल जाता है और ये हो जाता है नापसंद. ये हम अपोजिट बनाने के लिए कर रहे होते हैं. सो आवर फर्स्ट रूल इज सम वर्ड्स आर मेड अपोजिट्स बाय प्रीफिक्सिंग डिस. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि हम डिस जोड़कर उन्हें अपोजिट बना देते हैं. जैसे कि लाइक, वी एड हियर डिस एंड द वर्ड बिकम डिसलाइक. इन ऑनेस्ट, वी एड डिस एंड इट बिकम dishonest. And the meaning of honest has changed, pure opposite to honest. Other is obey, please, and when we add this then it become disobey. Please become displeased. ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, लेकिन जैसे ही हम इसमें डिस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है निराज्ञा.
यानी अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा का अवहेलना करना, आज्ञा की पालन नहीं करना। प्लीज़ का मतलब होता है खुशनुमा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे डिस जोड़ देते हैं तो वहाँ पे हो जाता है दुखद या दुखी करने वाला। नेक्स्ट रूल इज व्हेन वी ऐड un, and the word become opposite, and the root word will remain same. Here the root word is kind, and kind का मतलब होता है दयालु, and when we add here un, and it become unkind, and unkind mean क्या होता है अनकाइंड मीन? जब काइंड का मतलब दयालु होता है तो अनकाइंड का मतलब निर्दयी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर दैट हैप्पी। हैप्पी में जब हम अन जोड़ देते हैं, व्हेन वी ऐड अन इन रूट वर्ड हैप्पी, देन इट बिकम अनहैप्पी, एंड द मीनिंग ऑफ हैप्पी हैज बीन चेंज्ड इन अपोजिट। Next rule is when we add a prefix that is in, and the word become totally opposite. हमें क्या जोड़ना है यहाँ पर? यहाँ पर हमें इन जोड़ना है और हमारा शब्द क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमें बेसिकली इन शब्दों को याद ही करना होता है। ऐसा कोई सेट ऑफ रूल वैसे होता नहीं है कि इस कारण से यहाँ पे ये लगा है, इस कारण से ये लगा है, लेकिन हमें इन्हें याद करना होता है ताकि हम इन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें, अच्छी तरीके से हमारे आंसर दे सकें, अच्छी तरीके से हम हमारी बातों को दूसरों को बता सकें। फॉर एग्जाम्पल वी टेक करेक्ट, and when we add in then it become incorrect, and the meaning of correct has been changed to the opposite. Next example is complete, and when we add prefix in incomplete, then the complete become incomplete, and the meaning of complete has been changed to empty, यानी not empty, that is incomplete, यानी complete का मतलब होता है पूर्ण हो जाना। जैसे ही हम यहाँ पर इन जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है अपूर्ण, यानी कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट रूल जो अपना है वो है when we add miss, some words are made opposite by a way of adding mis before them। देखिए before them and after them, हम जब अपोजिट बनाएंगे when we made new word that is opposite, we are going to add something before or after the root word. When we add something before a root word से पहले हम कुछ जोड़ते हैं तो हमारा जो नया शब्द बनता है वो हमारा क्या होता है? एक नया स्पेलिंग होता है। हो सकता है वो अपोजिट हो सकता है वो कुछ और हो, लेकिन जब पहले कुछ जोड़ दिया जाता है when we add something before a root word, then this process is called prefixing। ये क्या कहलाती है? प्रीफिक्सिंग कहलाती है। लेकिन बट when we add something after a root word, then we get a new word, and this process adding something in root word, this process called suffixing। देखिए यदि हम कोई शब्द किसी शब्द से पहले जोड़ देते हैं
तो वो प्रीफिक्सिंग कहलाता है। और यदि हम कोई शब्द उसी शब्द के पीछे की तरफ जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है सुफिक्सिंग। और इन्हीं से हम नए शब्द प्राप्त करते हैं। जैसे प्रीफिक्स, फॉर एग्जांपल यदि हम प्रीफिक्सिंग का एग्जांपल लें तो हमारे पास बहुत से अभी आए हुए हैं। एज ए एग्जांपल, look at here, the root word is use and we add here miss, and the new word is misuse. Look at here, deep and constant, the root word is used and the word has not changed, but the meaning of after adding a prefix that is mis, the meaning of root word has been changed. देखिए रूट वर्ड हमारा है यहाँ पर यूज में हमने यूज से पहले हमने एक शब्द जोड़ा है, वो है मिस। और मिस को जोड़ते ही हमारे पास रूट वर्ड का मीनिंग बदल गया है। बाकी स्पेलिंग तो रूट वर्ड की वो रही है, मीनिंग बदला है। तो यूज़ का मतलब होता है उपयोग लेना और मिस यूज़ का मतलब है व्यर्थ गंवाना। और यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है, वो कहलाती है प्रीफिक्सिंग। और इसके बाद जो हम देखते हैं वो होती है सुफिक्सिंग। सुफिक्सिंग में क्या होता है? इन सुफिक्सिंग we add something in a word and the word become change and meaning of that word also change. जैसे for example, यदि हम एक शब्द लेते हैं, शब्द है हमारा take a word that is even, even का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। बट when we add here ing, that we are adding after the word root word, this process called suffixing. जब हम यहाँ पर even में ing जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द तैयार होता है और नया शब्द हमारा हो जाता है evening, और ये हो जाता है इवनिंग, जिसका मतलब होता है शाम। क्या होता है? शाम। इवन का मतलब था वो थी सम संख्या, और ing हमने यहाँ पे एक सुफिक्स जोड़ा है और ये हमारा बन गया इवनिंग, और इवनिंग का मतलब हो गया शाम। ये हमारे नए शब्द प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है सुफिक्सिंग और प्रीफिक्सिंग। और इन्हीं से लगभग एंटोनिम या फिर हम कहें तो इन्हीं से हमारे अपोजिट्स बनते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, दैट इज फॉर्चून। एंड फॉर्चून में ऑल्सो वी ऐड मिस एंड दैट्स बिकम मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य। सौभाग्य से हो गया दुर्भाग्य। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5. When we add IR, IL or IM before a word to make opposite, जैसे हमारे पास शब्द हैं, यानी जब हम IR, IL और IM जोड़ते हैं तो भी हमारे अपोजिट बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक जो शब्द ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे IR का हमने लिया रेगुलर वर्ड, वी टेक रेगुलर for example of IR and it become irregular, and for IL we take legal and it become illegal. रेगुलर का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार, एंड इरेगुलर का मतलब हो गया कोई कार्य लगातार नहीं होना। लीगल का मतलब हो गया कानूनी, और इलीगल का मतलब हो जाता है गैर कानूनी। ठीक उसी प्रकार से पॉसिबल,
और पॉसिबल का अपोजिट हो जाता है आई एम जोड़ते ही इम्पॉसिबल, प्योर में इम्प्योर। ये हमें याद करने हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो रूल क्या कहता है कि यदि हमारे किसी शब्द में पीछे की तरफ फुल दिया हुआ हो, when a word is followed by full, यानी एक शब्द के पीछे की तरफ फुल दिया हुआ हो तो वहाँ पे हमें उसका अपोजिट बनाने के लिए करना क्या होता है, फुल को हटा के लेस कर देना होता है। और जैसे हम उसे लेस कर देते हैं तो हमारा उसका अपोजिट तैयार हो जाता है। जैसे हमारे पास वर्ड है वो है यूज़फुल। यूज़फुल का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि फुल को हमें किस में बदलना है, लेस में बदलना है। तो यूज़फुल को हमें क्या करना होगा, फुल हटा देना है और लेस रख देना है। तो यहाँ पे रूट वर्ड तो हमारा जो था वो था यूज वैसा का वैसा ही रहा, और लेस जुड़ते ही हमारे पास उसका अपोजिट तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार से है केयर, और केयर में हमने जोड़ा फुल। अब हमें इसका अपोजिट बनाना है तो केयर में से हमें फुल हटा देना है और लेस कर देना है, तो केयरलेस हो जाएगा। देखिए फुल का मतलब होता है भरा हुआ और लेस का मतलब होता है कम। सो हमारे पास यहाँ पर रूट वर्ड हमने एज इट इज़ रखा है। हमने किया क्या है, जो हमारा सुफिक्स है सुफिक्स का ही अपोजिट ऐड कर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट रूल हमारा जो है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि इन सम ऑफ द वर्ड्स अपोजिट प्रीफिक्स आर एडेड टू मेक देम अपोजिट। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर कि हमें अपोजिट शब्द उसमें ऐड कर देना होता है, और प्रीफिक्स का ही अपोजिट हमने ऐड कर देना होता है और वो हमारा अपोजिट बन जाता है। जैसे अभी हमने सुफिक्स का अपोजिट हमने ऐड किया था, जैसे फुल का हमने किया था लेस और हमारा अपोजिट तैयार हो गया था। सेम एज इट इज़ हियर वी विल चेंज द प्रीफिक्स बाय द अपोजिट प्रीफिक्स। सो फॉर द एग्जाम्पल वी टेक इंडोर। इंडोर का मतलब होता है कि चार दीवारी के अंदर। सो इनका अपोजिट हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, इनका मतलब होता है अंदर आना, आउट का मतलब बाहर जाना, तो अपोजिट इनका हो जाएगा आउट। सो वी टेक हियर द प्रीफिक्स अपोजिट एंड अपोजिट प्रीफिक्स इज आउटडोर। सो हमारा जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड हैज़ नॉट चेंज एंड we have changed in prefixing, so we get a opposite word. रूल नंबर 8 जो है वो क्या कहता है, रूल नंबर 8 we learn that the most some of the words some of the words have their opposite meaning but their root word all has been changed. Here look at here, देखिए जो गुड है, गुड का अपोजिट हमें पता है बैड है, क्लेवर का अपोजिट हमें पता है स्टूपिड है, वीक का अपोजिट हमें पता है स्ट्रॉन्ग है, ये हमें पता है। लेकिन आपने एक बात गौर की, अब तक हमने ये जो पढ़े 1 से लेकर 7 तक के, इन आवर लास्ट 7 rules we have seen that the root word has not been changed, but in the rule number 8 we will see that the root word is totally replaced by another word. So look at here, the good has been replaced by the bad, and the bad is opposite of good.
as it is weak has opposite strong, and the root word is totally replaced. These 8 are the basic rules to make some opposite, but we have to knowledge about the other part of our speech and other part of our English language. So look at here, there are three types of rules also there. In all three rules we will see that whether our word which is required to be changed by opposite is in adjective, in preposition, in at the position of interjection, at the position of adverb, pronoun, noun and conjunction, the opposite word also be replaced them at the position of same as well as they are. कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे इन नियमों में। पहली बात तो एक है कि जैसा हमारा शब्द हमारे सेंटेंस में दिया हुआ है, जिस पोजीशन पे दिया हुआ है, हमारा अपोजिट ठीक उसी पोजीशन पे ही आएगा, उसी अवस्था में आएगा जैसा वो है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो वर्ड है वो तो नाउन पे है और हम ले जाके उसे चेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कहीं और, तो वो नहीं होगा। नाउन में है तो नाउन में ही चेंज होगा अपोजिट। यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव पर ही चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइज इज एन एडजेक्टिव एंड द फुलिश इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। तो वाइज का यदि वाइज एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की जगह ही फुलिश आएगा। इन इज अ प्रीपोजिशन एंड द आउट इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन। यस इज एन इंटरजेक्शन, so no is also an interjection. Heaven is a noun and hell is also a noun. So जो जहाँ पे है वो वहीं पे चेंज होगा। यही बात इस हमारे ऊपर वाले नियम फर्स्ट में कही गई है। सो इसे आप अपनी बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो रूल हमें क्या कहता है कि इफ वी आर चेंजिंग अपोजिट इन verbs then the root verb is belong to which tense is matter। यानी यदि हम क्रिया में कुछ बदलाव कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तो हमारा जो रूट वर्ड है, क्रिया का जो रूट वर्ड है, वो डिपेंड करता है कि कौन से काल का है। जिस काल में वो होगा उसी काल में हमारी वर्ब भी लिखी जाएगी जो हम चेंज करेंगे। लुक एट हियर, द वेंट। Went is second form of past, second form of verb that is used in simple past, and the came is also second form of come and used in past simple। so went का अपोजिट हमारे पास जो होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, came होगा। going is coming is to change in coming, go in come। यदि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में है तो कम में। ठीक उसी प्रकार से गोन इज पास्ट पार्टिसिपल एंड कम केम कम इज ऑल्सो ए पास्ट पार्टिसिपल। विल गो विल कम, जो जिस टेंस में है वो उसी टेंस में बदला जाएगा। अगला जो हमारा नियम थर्ड है वो थर्ड क्या कहता है कि
हमारा रूट वर्ड जिस अवस्था में होता है, सिंगुलर है, प्लूरल है या कैसा है, वैसा ही हमारा वो अपोजिट लिखा जाएगा। Look at guys here. Here the friend is singular. Friend is singular. Then enemy is also a singular. Enemy is also a singular. Look at here, friends, and the opposite of friends is enemies. Look at here, gods is singular, then comes is also singular. So guys, if you have any query regarding this topic, so let me know. Before winding our lesson, today we have come up with a table of opposites. In this table we will learn about the opposite directly or by the set of rules. देखिए गाइस, हमारी किताबों में हमें ऐसी एक सारणी दी गई है अच्छी तरीके से, जो हमारे किताबों के लेशंस के अनुसार भी अपोजिट्स को डिफ़ाइन कर रही है, उन्हें भी बता रही है हमें। तो ये जो सारणी है वो हमें अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि कल की क्लास में मैं आप लोगों से इसी के बारे में पूछने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज दूंगा आगे की क्लास में एक्सरसाइज होंगी, उनमें से कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, बाकी की एक्सरसाइज आपको खुद को करनी होगी, और वो भी बिना नकल किए हुए। सो बी रेडी और इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।